So today we'll start this chapter 9, sequence and series. So natural numbers are the product of human spirit. डेडिकाइंड ने कहा था ये. So article 9.1 में introduction दे रखा है. You are supposed to read each and every word of this NCERT book. You have already studied arithmetical progression in your 10th class. Now फिबोनाची का कार्यकाल है 1175 से लेके 1250. इन्होंने सीक्वेंस के ऊपर काफी काम किया था. सीक्वेंस होता क्या है आर्टिकल 9.2 में दिया है. सो एज्यूम दैट देयर इज अ जनरेशन गैप ऑफ 30 ईयर्स. वी आर आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ एंसेस्टर्स, दैट इज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड grandparents, great grandparents, etc., that a person might have over that is 300 years. So here total number of generations will be 10 because he is asking for the period of 300 years and generation gap is of 30 years. So 300 divided by this 30 will give you 10. So 10 generations are there. And suppose here first 2 and then 4, then 8, these are the ancestors, then 16, then 32 separated by commas and dash 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 up to 1024. So these are forming a sequence. Okay, consider one more example. If we divide 10 by 3, so first, and we note the quotient, so first we will get 3, then we will divide one more step, that is 3.3, then we divide at one more step, that we will get 3.33, and so on, 3.333 and so on. Okay, तो आपने देखा कि ये रैकरिंग होता है और ऐसे ही आता जाएगा, तो इसको सीक्वेंस कहते हैं. सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो A1, A2, A3 सो ऑन से डिनोट की जाती है. nth टर्म को an या tn कहा जाता है. nth टर्म इज डिनोटेड बाय an और tn, जैसा कि आपने इसमें 10th क्लास में पढ़ा था. तो इट इज कॉल्ड nth टर्म of the sequence. You can say this as tn, nth term, or it is also called general term of the sequence. Now, if there are finite number of terms in the sequence, then that will be called finite sequence. And if there are infinite, then it will be called infinite sequence. Very simple. So sequence are of two type depending over number of terms. If number of terms are finite, then it will be called finite sequence. Otherwise, it will be called infinite sequence. Now, here we have Fibonacci sequence. So here you observe there is not the particular nth term. Sequence is generated by recurrence relation. So यहाँ पर a1 a2 1 दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म इज 1, थर्ड टर्म यहाँ से आप देखेंगे a1 प्लस a2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. सो थर्ड टर्म a3 यहाँ पर 2 आ गया. अब यहाँ पर आप देखेंगे इस फार्मूले से n की वैल्यू 2 से बड़ी है, 3 हम निकाल चुके हैं, a4 निकालते हैं. तो a4 निकालेंगे, फार्मूला आपको दे रखा है, इट विल बी 4 minus 2, so a2 plus 4 minus 1 is 3, so a3. So fourth term will be sum of second term and third term. अब second term हमारी 1 है और third term हमारी 2 है, so 2 plus 1 3 हो जाएगा. तो आप देखेंगे कि यहाँ पे fourth term 3 आ रही है. अब हम a5 निकालेंगे, that is fifth term. So from this recurring formula, a5 is 5 minus 2 is 3, so it is a3, and we will put n is equal to 5. So 5 minus 1 is 4. So here we will get a4. Now a3 and a4. So third term and fourth term यहाँ sequence ऊपर दे रखा है, इसमें देखेंगे 2 plus 3 that is 5. तो ये आपकी पांचवी टर्म 5 आ गई. इसी तरह से a6 निकालेंगे, a6 will be a5 a4 plus a5. So a4 आपके पास है 3 and a5 है 5, so it is 3 plus 5
दैट इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर ये छठी टर्म आप निकालेंगे 8 आ जाएगी, डैश सो ऑन। तो इस तरह से ये इनफाइनाइट सीक्वेंस बनेगा। इस तरह के सीक्वेंस को फिबोनाची सीक्वेंस कहा जाता है। यहाँ पर रेकरेंस रिलेशन से टर्म्स आती हैं। दिस रिलेशन इज कॉल्ड रेकरेंस रिलेशन, दिस वन। ओके, आगे देखिएगा। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, a sequence is defined as an arrangement of numbers in a particular order. It is the definition of sequence. Actually, sequence is a function. So a sequence is defined as an arrangement of number in a particular order. On the other hand, a series is defined as the sum of elements of a sequence. So it is a answer of the question that what is the difference between a sequence and a series. Sequence में तो terms को कॉमास से सेपरेट करते हैं और एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है वहां पर। वो फाइनाइट हो सकता है या इनफाइनाइट सीक्वेंस हो सकता है। जब उनकी टर्म्स को हम ऐड करते हैं, उनका सम लेते हैं, तो वो सीरीज बन जाती है। यहां पर आप देखेंगे ये है A1, A2, A3 एंड सो ऑन डैश 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 अप टू AN प्लस सो ऑन, इनफाइनाइट सीरीज है। तो यहां पर इनको सम लिया गया है और सम को डिनोट करने के लिए सिग्मा नोटेशन यूज किया जाता है। इट इज कॉल्ड सिग्मा नोटेशन। यहाँ पर कोई जनरल एलिमेंट ए के ले लेंगे तो के जो है ये सब स्क्रिप्ट होती है। दिस के इज कॉल्ड सब स्क्रिप्ट। इट वेराइज फ्रॉम, लोअर लिमिट यहाँ पर आएगी, के वेराइज फ्रॉम 1 और 1 टू n। अगर यहाँ पर आपको फाइनाइट सीक्वेंस A1 से AN तक दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे इंफिनिटी दे रखा है तो यहाँ n की जगह आप इंफिनिटी लिख देंगे, लाइक दिस। इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी, तो n की जगह आप यहां पर इंफिनिटी लिख जाएंगे। और k को 1 लिखेंगे तो A1, k को 2 लिखेंगे तो A2, k को 3 लिखेंगे तो A3, इन सब का समेशन। सो दिस सिग्मा नोटेशन इज फॉर समेशन। यहां पर आप देखेंगे A1 से लेके n तक है, तो ए के वेराइज सब स्क्रिप्ट कहते हैं इसको, इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट में n आएगा यहाँ पर, क्योंकि फाइनाइट सीरीज है, n तक जा रहे हैं। यहाँ पर n के बाद भी डैश 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 लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर इंफिनिटी किया। तो ये इनफाइनाइट सीरीज है और यहाँ पर ये फाइनाइट। सिग्मा का मतलब सम होता है, सम करना। यहाँ पर कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल दे रखे हैं। यू आर सपोज टू डू दीज सॉल्व्ड एग्जांपल। नाउ एक्सरसाइज 9.1 इज वेरी सिंपल, सो let us take that exercise for you. Now here it is exercise 9.1. So write first 5 terms of each of the following sequence in exercise 1 to 6 whose nth terms are. तो यहाँ पर nth terms आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, an is given as n plus 2. So nth term is given. You can find A1, A2, A3, A4 and A5. He is asking first 5 term. So when you put n is equal to 1 here, you will get 1 into 3, that is 3. n को 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 2 जा 8। n को 3 पुट करेंगे तो 5 3 जा 15। n को 4 पुट करेंगे, so 4 plus 2 is 6, 6 4 जा 24। एंड 5 पुट करेंगे n को तो 5 plus 2 7, 7 into 5 35। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसकी 5 टर्म्स इनिशियल जो हैं वो आपने निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलर है एंड दीज आर द वेरी इजी क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2, an is given as n upon n plus 1. So you can find a1, 1 will be 1 upon 1 plus 1, that is 2. A2, that is 2 upon 3. Okay. A3 is 3 upon 4.
A4 is 4/5 and A5 फिफ्थ टर्म इज 5/6। ओके, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब आप, nth टर्म यहां पर चेंज हो रही है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, an is given as 2⁻n। सो n को 1 लेंगे तो 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, n को 2 लेंगे 2 2 4, n को 3 लेंगे 2 2 4 2 8, n को 4 लेंगे तो ये 16 आ जाएगा यहाँ पर, और n को 5 लेंगे तो ये 32 आ जाएगा। इस तरह से 5 टर्म्स आपने निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आई एम डूइंग दिस फॉर प्रैक्टिस, आई नो दैट यू कैन डू दिस क्वेश्चन, no doubt at all। So we take here question number 5। So an is given as -1 raised to power n minus 1 multiplied by 5 raised to power n plus 1। So here we take n is equal to 1। तो आप यहां पर पुट करके देखिएगा, -1 की पावर 1 - 1 दैट इज 0 इंटू 5 रेज टू पावर n को आपने 1 लिया है, सो इट इज 2। तो -1 रेज टू पावर 0 इज 1 एंड 5 रेज टू पावर 2 इज 25। तो फर्स्ट टर्म आ गई आपकी 25। अब 2 निकालेंगे, n को a2, तो -1 की पावर 2 - 1 एंड 5 की पावर 2 + 1 दैट इज 3। तो यहां पर आप देखेंगे -1 की पावर 1 है तो ये नेगेटिव आएगा, और 5 पंजे 25 पंजे 125। तो इस तरह से आप इसकी बाकी टर्म्स भी निकाल लेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एंड यू कैन फाइंड other terms also। So you can do rest of the questions। Let us move further। So in this exercise, find the indicated terms in each of the sequences in exercise 7 to 10 whose nth terms are। तो यहाँ पर nth terms आपको दे रखी हैं और indicated terms आपको निकालनी है। तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7, nth term is given as 4n minus 3। He is asking A17 मतलब 17वीं टर्म वो पूछ रहा है। सो 4 यहां पर 17 पुट कर देंगे, और ये माइनस है यहां पर 3। ओके, -3 ये 65 आ जाएगा। फिर इसने पूछा है A24 निकालिए। सो इट इज 4 × 24 -3 -3, तो 93 आ जाएगी। तो इस तरह से ये आपने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। nth टर्म यहां पर दे रखी है, डायरेक्ट इसी को यूज करेंगे, A20 निकाल लेते हैं। सो वी विल पुट 20 हियर, 20 20 -2, n की वैल्यू 20 पुट करनी है, सो इट विल बी 20 + 3। सो 20 and 20 - 2 is 18। so dot for multiplication divided by 23। so 18 दूनी 36, 360 अपॉन 23। तो ये आंसर आ गया आपका यहाँ पर। तो इस तरह से क्वेश्चन 10 किया है। रिमेनिंग क्वेश्चन यू कैन ट्राई। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देख लीजिएगा, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर an दैट इज nth टर्म आपको दी हुई है, -1 रेज टू पावर n - 1 मल्टीप्लाइड बाई n रेज टू पावर 3, और उसने पूछा है A9। तो n को 9 रख देंगे, तो -1
की पावर 9 माइनस 1 और n को 9 रखना है, तो 9 की पावर 3 और -1 की पावर यहां पर 8 हो जाएगा, विच इज इवन नंबर, और 9 इंटू 9 इंटू 9 3 बार आएगा, सो ये 1 हो जाएगा, -1 की पावर 8 और मल्टीप्लाइड बाई दो को मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, सो ये 81 हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाई 9। इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 वन ज़ा 9 एंड नॉट थे, ये 72 हो जाएगा। तो ये आपकी 9th टर्म आ गई क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, सो सिमिलरली यू कैन डू द रिमेनिंग क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। A7 पूछा है, तो इट इज 7 स्क्वायर बाई 2 की पावर 7। ओके, सो 49 और 2 की पावर 7 ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, इट इज योर आंसर। अदरवाइज 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि आपको एक nth टर्म, दैट इज जनरल टर्म, आपको दे रखी है, लेकिन ये एपी नहीं है। ओके, अर्थमेटिकली प्रोग्रेस नहीं कर रही। क्वेश्चन नंबर 11 टू 14 है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। जस्ट सी, these are the questions of exercise 9.1. So question number 1 to 13 you can do. Question number 14 is Fibonacci sequence, जो भी हमने किया था। तो इसको देखिएगा, यहाँ पर A1 is 1, A2 is also 1, A3 इस रेफरेंस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं A3। आप देखेंगे ये रेफरेंस फार्मूला आपको यूज करना है। सो A3 इज A2 प्लस A1, तो इन दोनों का सम आ जाएगा, दैट इज 2। A4 निकाल लेंगे आप, सो A4 इज A3 प्लस A2, इन दोनों का सम दैट इज 3। अब A5 निकाल लेंगे, तो वो इन दोनों का सम आ जाएगा, दैट इज 5। फिर A6 निकाल लेंगे, तो इससे पहले वाली दो टर्म्स का सम आ जाएगा, 5 और 3 8 आ जाएगा। और फिर A7 आप निकालेंगे, तो A7 विल बी 8 5 13। ओके, तो इस तरह से ये फिबोनाची सीक्वेंस आता जाएगा। अब इसने वैल्यूज पूछी हैं an प्लस 1 अपॉन a, मिस प्रिंट है यहाँ पर, सो लेट अस चेक क्या है यहाँ पर। इट इज an। ओके, यहाँ पर an है, सो यू कैन राइट an। इसकी वैल्यू आपको बतानी है फॉर n इज इक्वल टू 1, तो यहां पर आप लिखेंगे n की वैल्यू 1। ठीक, फिर यहां पर लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 2 के लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए, n इज इक्वल टू 4 के लिए, ऐसे ही आप 5 के लिए निकाल लेंगे। तो ये लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे, टेबुलर फॉर्म में आपको बता देते हैं, लाइक दिस। n की वैल्यू 1 रखेंगे, सो इट विल बी a2 बाई a1। सो a2 बाई a1 इज 1 बाई 1, दैट इज 1। n को 2 रखेंगे, सो इट इज a3 बाई a2, 2 अपॉन 1 दैट इज 2। फिर n को यहां पर 3 रखेंगे, सो इट विल बी a4 बाई a3, सो दिस अपॉन दिस, सो इट विल बी 3 बाई 2। और n को जब यहां पर 4 रखेंगे, सो इट विल बी a5 बाई a4, सो दिस अपॉन दिस, सो 5 बाई 3 हो जाएगा। इसी तरह से n इज इक्वल टू 5 के लिए इसने पूछा है यहां पर, सो n को 5 रखेंगे, इट विल बी a6 अपॉन a5, सो दैट इज 8 बाई 5, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 8 बाई 5। तो इस तरह से आपने n की वेरियस वैल्यूज के लिए 1 2 3 4 5 के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली फिबोनाची सीक्वेंस के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 12
and 13 you may try. So with this exercise 9.1 is over. Next time we will continue with arithmetical progression, sequence and series. Okay. Arithmetic progression. In short, it is called AP. इसकी जो नेचर होती है एडिटिव होती है. एडिटिव. एडिटिव का मतलब यहां पर जो आएगा प्लस होके आएगा. ओके. सपोज वी हैव फर्स्ट टर्म एज ए. इसमें एक नंबर हम ऐड कर देते हैं डी, तो इट इज ए प्लस डी. फिर हम इसमें डी ऐड कर देते हैं, ए प्लस डी दैट इज 2d. फिर इसमें डी ऐड करते हैं, ए प्लस 3d एंड सो ऑन. ओके. तो यहां पर एक कांस्टेंट नंबर इसमें ऐड हो रहा है, इसलिए ये एपी है. अर्थमेटिकली प्रोग्रेस कर रही है. तो जब एक कांस्टेंट नंबर टर्म्स में ऐड होता जाए तो उसको एपी कहते हैं. अब यहां पर इट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म. ये यहां पर सेकंड टर्म है, इसको T2 कह सकते हैं. यहां पर ये थर्ड टर्म है, इसको T3 कह सकते हैं. और यहां पर ये फोर्थ टर्म है, इसको T4 कह सकते हैं. तो आप यहां पर देखेंगे थर्ड टर्म में 2 आ रहा है, फोर्थ टर्म में 3 आ रहा है, तो एक कम आ रहा है. तो यहां पर अगर हम nth टर्म लिखना चाहें Tn, तो 4 है तो 3 है, तो n है तो n-1 होगा यहां पर. ओके. तो ये nth टर्म होती है. इट इज कॉल्ड nth टर्म, a प्लस n-1d. तो आप फार्मूलाज यहां पर देखेंगे. nth टर्म ऑफ AP इज a प्लस n-1d. यू हैव स्टडीड इन 10th क्लास. और a यहां पर फर्स्ट टर्म है, d को कॉमन डिफरेंस कहते हैं. तो यू कैन राइट a इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस और प्रोग्रेशन, and this d is called common difference. Sum to n term, that is n number का sum AP का निकालेंगे. So that is equal to n by 2 2a plus n-1 d. एक फार्मूला और होता है यहां पर, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. दैट इज n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ओके. यू कैन से an. तो जब लास्ट टर्म अगर आपको पता है तो आप इसको लगा सकते हैं फार्मूले को. अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे. तो यहां पर 2 ही फार्मूले हैं, जनरल टर्म का और सम टू एन टर्म का. ये 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं. 11th क्लास में आप यहां पर पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन, जिसको AM से डिनोट करते हैं. फिर GP पढ़ेंगे तो उसमें ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे. फिर इन दोनों के अंदर रिलेशन पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के अंदर रिलेशन क्या है. और इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आप करेंगे.